हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अनअकैडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। इकोनॉमी एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। इकोनॉमी एक बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट, इसकी वेटेज अगर देखा जाए प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सिविल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा है। But despite this weightage, students are not able to get good marks in economy because they face difficult in understanding the basic concept, the nuances, and also the dynamic part, the current affairs part of economy, which is very much. So, to solve your problems, to make economy easy, and especially those who are preparing for 2025 and who don't have time to waste even a single day, in this context now, I am going to start a economy modular course where all your economy related concepts, be it static, be it dynamic, everything will be covered through previous year questions. You know that in UPSC there's no syllabus. If you go and look around the syllabus is humongous, and even if you're not able to understand what exactly they're going to ask, but if there's one source, but there's one holy book for your exam, that is the PYQs. PYQs are the central pillar in your civil services preparation. Along with newspaper and PYQ, these two are something which are highly non-negotiable when you are studying for civil services. So in this particular modular course, what my target is that to make you understand economy with the help of the previous year questions, so that you are able to understand what exactly they are asking, which topic they are focusing, and all the current affairs related to that static part which they have already asked, which has the probability of again being re-asked. So इस तरीके से ये मॉड्यूलर कोर्स को डिजाइन है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग इन डेप्थ समझेंगे, किस टॉपिक से कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, क्यों वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू आंसर what are the PYQs. Second, why did they asked? Was it in news? Was it covered in NCERT? Was it a very general concept? So what, why, and where, from where, which topic, from where they are going to ask or they have asked in the last 10-12 years. So what, why, and where. If you're able to understand what, why, where, then your half of the job is done. सो इसीलिए ये पूरा जो कोर्स है जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगा, काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा. तो जो भी स्टूडेंट्स 2025 और 2026 के अटेम्प्ट्स के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए दिस कोर्स इज नॉन नेगोशिएबल. ये तो आपको देखना ही है, बिकॉज इससे आपका इकोनॉमी के लिए अंडरस्टैंडिंग एक नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, दैट आई कैन गारंटी. But for that you have to be patient, for that you have to be honest, and for that you have to do the self-study after these courses. In courses में Q&A sessions भी होंगे, so you can ask the questions also in the comment box. You can ask the questions, I can reply to those questions, I can give the answer in the next class whenever I see your questions. So you don't need to worry. अगर आपका बहुत ही छोटा सा बेसिक भी है इकोनॉमी में, इफ़ यू नो लिटिल बिट अबाउट इकोनॉमी, आपने कहीं पढ़ा होगा, आपने खुद से पढ़ा होगा, आपने किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ा होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज थिंग्स, दिस कोर्स में जिस तरीके से आई विल बी टीचिंग यू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट वुड बी इन द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म. तो इससे आपको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा, और साथ ही साथ by the end of this course you will be very much interested in the subject economy, which the subject haunts you the most. तो जिस सब्जेक्ट से आपको डर लगता है, I can promise you with my experience of doing this that you will be falling in love with this subject, because economy देखने से डर लगता है, देखने से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक टाइप का लगता है, बट अगर आपको इकोनॉमी का लॉजिक समझ में आ गया, अगर इकोनॉमी का आपको जो कॉन्सेप्ट है, जो फाउंडेशन है, इफ़ दैट फाउंडेशन इज क्लियर, देन आप देखोगे आपके हर एक क्वेश्चन इकोनॉमी में बन जाते हैं. So even if they are asking 10 questions, hardly एक दो क्वेश्चन अगर आप छोड़ दो, because that is unpredictable, that is very much अजीब सा वाला टाइप क्वेश्चन, but 8 questions for sure you will be able to answer in prelims, और मेंस में तो सारे क्वेश्चन लग जाएंगे. So in this previous year question, we will start with PYQs related to prelims. Once with prelims, we are able to understand the basic
concepts. Then we will eventually discuss some of the mains question also which they have asked and the probability कि वो कहाँ से पूछेंगे, उन सारे subjects को, उन सारे concepts को भी हम लोग economy वाले इस particular session में cover करेंगे. So I welcome you all in this particular session. तो आज हम लोग basically बात करेंगे कि exactly what we are going to do this. आप सोच सकते हो इसमें लगभग 60-70 वीडियोस होंगे बिकॉज वी विल ब्रेक डाउन इन डिफरेंट पार्ट्स बिकॉज इकॉनमी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उस बड़े सब्जेक्ट को आई हैव ब्रोकन डाउन इनटू डिफरेंट सब पार्ट्स जहां से वो क्वेश्चन पूछे हैं. सो सी दिस इज नथिंग विच आई हैव डन बाय मायसेल्फ. आई हैव रिगरसली अंडरस्टूड द PYQ एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई हैव अंडरस्टूड कि क्या उनका फोकस एरिया है, क्या वो पूछना चाह रहे हैं, क्या वो जानना चाह रहे हैं. सो वॉट एवर एनालिसिस विच आई एम गोइंग टू गिव यू, इट इज सिंपली ऑन द अनबायस्ड, रिगरस, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विच दे हैव आस्क्ड सिंस 2011. तो आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए, अगर आप ऑफलाइन में क्लासेस करना चाहते हैं विद द टॉप एजुकेटर्स, देन आप हमारे करोल बाग ब्रांच में विजिट कर सकते हैं जहां पर आपको ऑफलाइन में यूपीएससी के रिलेटेड बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं. सो यू कैन मार्क दिस डेट ऑफ 23 सितंबर. साथ ही साथ मुखर्जी नगर में भी हमारे बैचेस ऑफलाइन में हिंदी मीडियम में बैचेस हमारे स्टार्ट होने जा रहे हैं. यू कैन सी द डेट्स. आप हमारे ब्रांचेस में विजिट कर सकते हैं अगर आपको इसके अलावा और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए. इसके अलावा प्रयागराज में भी हमारे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं. तो आप हमारे प्रयागराज ब्रांच में भी विजिट कर सकते हैं. इसके अलावा आपको पता होगा कि अनअकैडमी जो है वो कई तरीके के ऑप्शनल कोर्स, एसए कोर्स, सीसैट कोर्स और इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स तो है ही. इसके अलावा आपको 1-to-1 मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस, डाउट सॉल्विंग एंड ऑन अ रेगुलर बेसिस यू कैन इंटरैक्ट विद द एजुकेटर्स ऑल्सो. तो इस सारे इंफॉर्मेशंस के लिए आप हमारे किसी भी ब्रांच, करोल बाग, मुखर्जी नगर या प्रयागराज ब्रांच पे विजिट कर सकते हैं. वंस यू विजिट देयर, आवर टीम विल बी गिविंग यू ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच यू आर लुकिंग फॉर. अगर आप अभी विजिट नहीं कर सकते हैं एंड यू वांट इंस्टेंट इंफॉर्मेशन, आपके पास ये ऐप है, आप इस ऐप को डाउनलोड कर ले. यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. सो डोंट डिले इट, डाउनलोड द ऐप एंड एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी क्लियर कि इस पर्टिकुलर कोर्स में जहां पे हम लोग इकोनॉमी वाया PYQ कवर करेंगे, उसमें व्हाट वी आर गोइंग टू डू. फर्स्ट, एवरी PYQ, हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे सिंस 2011 से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे. व्हाट, वाई, क्यों पूछा गया और वो किस एरिया से पूछा गया है. सो व्हाट, वाई, वेयर, हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस होगा. इसके बाद उस PYQ में, बिकॉज PYQ का आंसर देना तो वो आप कहीं भी जाके गूगल करोगे आपको आंसर आ जाएगा, बट उससे क्या आने वाले क्वेश्चंस आप बन पाएंगे? बिकॉज ऐसा तो नहीं कि यूपीएससी रिपीट करता है. यूपीएससी का स्ट्रैटेजी क्या होता है कि वो PYQs में अपना सिलेबस बता देता है कि बॉस आई एम फोकसिंग ओवर हियर. अब उस फोकस एरिया में आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट बिल्ड ऑन करना होता है. तो जहां से वो लोग क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चंस का जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा उस स्टैटिक कॉन्सेप्ट से जितने भी करंट अफेयर्स हैं जो अभी तक के हैं वो सारे चीज आपको बताए जाएंगे. So PYQs के थ्रू we'll understand the syllabus, then we'll go to the static, then we will link it to the dynamic. Then इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, आपको पता है कि अभी जस्ट रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे और बजट आया है, तो इसीलिए उसको भी समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है. तो जितने भी स्टैटिक क्वेश्चंस हैं, अगर उन स्टैटिक क्वेश्चंस का कोई रिलेशन इस साल की इकोनॉमिक सर्वे या बजट के साथ है तो उस लिंकेजेस को भी हम लोग डिस्कवर करना के प्रयास करेंगे. इसके अलावा आप रेगुलर बेसिस पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स पे. अगर आपको इकोनॉमी में कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट है, आप कमेंट कर दो कि सर दिस प्रॉब्लम आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. वो आपको एवेंचुअली कवर कर दिया जाएगा बाय द नेक्स्ट सेशन. इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ट्रेंड पोस्ट 2020. 2020 was a pandemic year, but 2020 was also a very important year with respect to the civil services. Because अगर आप देखोगे 2020 से यूपीएससी का कट ऑफ जो है वो कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन हो रहा है. अगर आप इस ट्रेंड को नहीं समझोगे then you will not be able to crack the prelims or even the mains. So there has been a significant shift in terms of how UPSC has been asking question primarily after the year 2020. So इसीलिए जस्ट हम लोग आंख बंद करके PYQs पे फोकस नहीं करेंगे, बल्कि
हम लोग PYQs को इस तरीके से समझेंगे कि हम लोग उस नए ट्रेंड को भी समझ सकें, सो दैट वी कैन प्रेडिक्ट फ्रॉम विच क्वेश्चंस, फ्रॉम विच एरिया दे आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन। सो 2020 के बाद जो ये ट्रेंड चेंज हुआ है, ये हम लोग PYQs में देखेंगे कि वो कैसे क्वेश्चंस को शिफ्ट किया गया है, फोकस एरिया को शिफ्ट किया गया है, प्रायोरिटीज को चेंज किया गया है, सो दैट वी विल एबल टू अंडरस्टैंड। सो उसके लिए विल अंडरस्टैंड द पोस्ट 2020 ट्रेंड ऑफ सिविल सर्विसेज। अगर आप प्रीलिम्स में इकोनॉमी की वेटेज करोगे तो ये आपको पता ही होगा, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, दैट इकोनॉमी इज वन of the most important subject for your UPSC prelims. If you see the number of questions which they have asked, approximately 15 to 20 questions तो कहीं नहीं गया है, वो तो पूछना ही पूछना है इनको। ये क्वेश्चंस आप देख रहे हो, अगर लास्ट ईयर की बात करें 2023 की, तो 14 क्वेश्चंस पूछे थे, अगर आप इसमें करंट वाला भी जोड़ दो थोड़ा सा तो 17-18 क्वेश्चन पहुंच जाता है, विच मीन्स आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस बॉस, अगर 20% क्वेश्चन इकोनॉमी से आ रहा है और अगर आपको इकोनॉमी समझ नहीं आ रहा है, देन हाउ कैन यू थिंक ऑफ क्लियरिंग द प्रीलिम्स? It's as simple as that. So economy is that subject, वो तो करना ही करना है, इसके साथ कोई compromise नहीं कर सकते हो आप, because if you compromise then you will compromise your dreams of becoming a bureaucrat. So that's why it's very important that we have to cover economy in a much more detail. अगर फोकस एरिया की बात करें तो इकोनॉमी में, अगर हम मैक्रो इकोनॉमी की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमी में बेसिकली अगर आप देख सकते हो ये ब्रेकअप है, आप इस ब्रेकअप से गेज कर सकते हो कि वो क्वेश्चन कहां से पूछेंगे। अगर हम देखें एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब हो गया आपका जो ट्रेड है, FDI है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वहां से जो क्वेश्चन आता है वो आपको लगभग 28 क्वेश्चंस अभी तक पूछ चुके हैं, वो लगभग पिछले 10 साल में। सो एक्सटर्नल सेक्टर है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग, नेशनल इनकम में जो GDP है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, ग्रॉस नेशनल इनकम है, इसका वेटेज काफी कम है। देखो केवल 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, तो समझ में तो पहले ही आ गया कि इस टॉपिक का ज्यादा रेलेवेंस हमारे लिए नहीं है, तो इसको हमें प्रोपोर्शनेट टाइम देना होगा। सी UPSC इज ऑल अबाउट प्रोपोर्शनैलिटी। इफ यू आर गिविंग टू मच टाइम ऑन अ सब्जेक्ट which will fetch you less marks, then you're not following the proportionality. Then you will be going in a wrong direction, and that will take a 5-year span to clear this exam. This exam is all about speed. This exam is about predictiveness. This exam is about accuracy. So for accuracy, you have to dedicate your precious time in a proportionate manner as per what is the demand of the exam. So external sector is a clear-cut forgo, 28 questions, but if you see national income accounting, only 3 questions. So there's no point in giving much time. So इसलिए हम लोग इस particular आने वाले courses में, आने वाले lectures में, we will focus very less on national income and accounting. अगर इसके बाद बात करते हो आप money and money supply, money supply का आपने सुना होगा monetary base, high powered money, money multiplier, तो काफी अच्छा टॉपिक है ये, काफी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, काफी टेक्निकल टॉपिक है। अगर आप इसको रटोगे तो कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो जब हम लोग यहां से क्वेश्चन लगाएंगे तो आई कैन एश्योर यू कि जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझोगे इस सेशन में, तब देखोगे आप बहुत आसान हो जाएगा ये चीज आपके लिए। मॉनेटरी पॉलिसी, आप तो हर दिन नाम सुनते हो, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्या है, रेपो रेट क्या है, ये सब चीज सुनते हो, इन्फ्लेशन बढ़ गया, MPC की बैठक आ गई, तो ये सब चीजें हम लोग को कवर करना है। मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग एंड बैंकिंग रेगुलेशंस, NPA क्या है, सार्फिसी एक्ट क्या है, बैड बैंक्स क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या है, ये सब नाम जानते ही होंगे आप, ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ PSUs क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, NBFCs क्या होते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, जितने भी बैंक्स हैं, जितने तरीके के, वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। पेमेंट इकोसिस्टम, अभी अब देखो काफी ज्यादा न्यूज में है, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, अकाउंट एग्रीगेटर्स, ओपन क्रेडिट इनेबलेंट नेटवर्क, UPI को तो आप जानते हो, UPI से इन्होंने क्वेश्चन पूछ भी चुका है, ठीक है। IMPS, NEFT, तो वहां से ये क्वेश्चन पूछते हैं पेमेंट सिस्टम से। इसके बाद इन्फ्लेशन एंड रिसेशन, ये टॉपिक तो, इन्फ्लेशन तो पिछले 2 साल से न्यूज में है बॉस। इन्फ्लेशन आज इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज है, और केवल इंडिया का नहीं, अगर इकोनॉमी फॉलो कर रहे होगे, सो वन थिंग विच हैज बीन परसिस्टेंटली क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी इज द इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन से क्वेश्चन अगर पूछता है तो कोई सरप्राइज थोड़ी ना होना है, बिकॉज दैट इज प्रेडिक्टेबल कि वहां से वो क्वेश्चन पूछेगा। सो इन्फ्लेशन ऑल्दो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट आज के कॉन्टेक्स्ट में सी दिस इज अबाउट विजडम, दिस इज अबाउट फोरकास्ट। क्रिकेट में होता है ना फोरकास्ट, कितने स्कोर मारेगा अगर इससे खेल रहे हैं। तो अगर आज के जमाने की बात करो, आज जब इन्फ्लेशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, सो देयर इज अ हाई चांस दैट दे आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को हम लोग समझेंगे, CPI क्या है, WPI क्या है, जितना भी हमारे लिए समझने का है, बिकॉज दिस इज नॉट अ फुल फ्लेजेड कोर्स, बट इस कोर्स में आपको अपने बेसिक के ऊपर एक एडवांस तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दिया जाएगा। इसके बाद फिस्कल पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, FRBM एक्ट,
गवर्नमेंट ने पैसा खर्च करना स्टार्ट किया तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा। तो ये सब चीजें काफी ज्यादा ये जो पोर्शन है आप देख रहे हो मैक्रो इकोनॉमी, दिस इज अ पोर्शन जो आप रट के नहीं निकाल सकते हो। दिस इज अ पोर्शन जिसका कोई बुक नहीं है। दिस इज अ पोर्शन जिसका कोई सोर्स नहीं है। दिस इज अ हाईली मल्टी डायमेंशनल इंटरलिंक कॉन्सेप्ट एंड इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड। सो व्हेनेवर वी विल कवरिंग द PYQ, अभी जब हम लोग फॉलो करेंगे PYQ को, तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम इस पे डेडिकेट होने वाला है, बिकॉज ये समझना थोड़ा मुश्किल है। अगर इसका अगला पार्ट बात करें हम लोग इंडियन इकोनॉमी, जहां से वो क्वेश्चन एग्रीकल्चर से पूछा है, इंडस्ट्री से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से, सोशल सिक्योरिटी से, ये काफी आसान एरिया है। इसमें जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, कुछ फैक्चुअल डेटा है, ये सब चीज पढ़ना, तो इसमें कुछ ज्यादा समझने का नहीं है। इसमें केवल करंट अफेयर्स है। सी, ये भी करंट अफेयर्स है, बट ये करंट अफेयर्स में अप्लाइड है। कुछ चीज चल रहा है, उसका अप्लाइड क्वेश्चन ये पूछेंगे। तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप अप्लाइड क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर सकते हो। सो द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ इकोनॉमी इज दिस पार्ट। दिस पार्ट इज वेरी इजी, तो इसमें हम लोग ज्यादा टाइम नहीं देंगे। ये आसान टॉपिक है, इसमें जितने भी PYQs हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। इसमें भी देखो सबसे ज्यादा फोकस एरिया कौन सा है इनका, एग्रीकल्चर। 17 क्वेश्चन पूछ चुके हैं ये, मतलब लगभग हर साल क्वेश्चन पूछते ही 1-2। सो एग्रीकल्चर पे हम लोग थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। आज ही आपको पता है कि गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के लिए 7 मेजर स्कीम्स लॉन्च किए हैं, 15,000 करोड़ का। सो करंट अफेयर्स के बेसिस पे ये सारे क्वेश्चंस आपके इजीली बन जाएंगे। तो यहां तो सारे क्वेश्चंस बनेंगे हमारे, यहां थोड़ा सा रहेगा, अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो ये सारे भी क्वेश्चंस बन जाएंगे। बट फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी मच ऑनेस्ट विद द स्टडीज विच यू आर गोइंग टू डू। अब इसमें हम लोग करंट अफेयर्स को कैसे कवर करेंगे, बिकॉज PYQs तो ठीक है। अब मान लो कुछ क्वेश्चन पूछा गया है 5 साल पहले, अब आज क्या वो वापस से न्यूज में है? अगर वो न्यूज में है तो वो वापस से पूछ सकता है। तो इसलिए हम लोग करंट अफेयर्स को भी लिंक करेंगे, और करंट अफेयर्स में हम लोग फोकस करेंगे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस को, इकोनॉमी सर्वे जो इस साल का है, बजट, उसको भी हम लोग फॉलो करेंगे। इसके अलावा अगर आपका करंट अफेयर्स वीक है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत आता है, आपको ये समझ नहीं होता है कि हम क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े, क्या छोड़े, क्या नहीं छोड़े, कैसे नोट्स बनाए, अगर ये सारे चीजें आपको प्रॉब्लम है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सेड इन द स्टार्टिंग, न्यूज़पेपर एंड PYQs आर नॉन नेगोशिएबल। सो इफ न्यूज़पेपर आर क्रिएटिंग हर्डल, creating obstacle in your studying, then you can simply go to our Unacademy IAS Champion। इसी प्लेटफॉर्म पे आप जा सकते हैं, और इस प्लेटफॉर्म पे आपको एवरी डे मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग 9 AM आपको लाइव हिंदू पेपर का न्यूज एनालिसिस मिलता है, जहां पे पूरे हिंदू न्यूज़पेपर का A to Z फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट्स विथ नोट्स। साथ ही साथ आपको हर दिन सुबह 8:30 बजे तक टेलीग्राम ग्रुप पे यू विल बी गेटिंग द नोट्स PDF के फॉर्म में। तो आपका करंट अफेयर सॉर्टेड हो जाएगा इससे। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत आ रहा है, अगर आप पढ़ पाते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं। इफ यू आर अ न्यू पर्सन, इफ यू आर अ लेमैन, यू डोंट नो हाउ टू डू दिस, देन यू कैन सिंपली गो एंड डस्ट दिस। टेलीग्राम ग्रुप है ये, आप इस टेलीग्राम को विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे इधर के PDF, साथ साथ न्यूज़पेपर के PDF और बाकी करंट अफेयर्स का मटेरियल आपको वहां पे कवर किए जाएंगे। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू कवर। सो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, यू हैव टू ट्रस्ट मी। थिंग्स माइट बी गोइंग स्लो, किसी का बेसिक स्ट्रांग है तो उसको थोड़ा स्लो भी लग सकता है, बट इट डजंट मैटर। आप जिसका स्ट्रांग बेसिक्स है वो रिवाइज के फॉर्म पे देख लो, 2x पे देख लो, और जिसका बेसिक्स एक खराब है या जिसको इकोनॉमी में दिक्कत होता है वो आराम से देखे, ठीक है। बट एनीवेज माय पर्पस इज दैट यू हैव टू गेट all the questions done in your next coming prelims. If that job is done, whether it's slow or fast, it doesn't matter. But it's a day, night, it doesn't matter. The sky will fall anyway if you're able to क्रैक दिस एग्जाम, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जहां पे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पार्ट 1। पहला पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे PYQ में, और वो पार्ट होगा मॉनेटरी पॉलिसी, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग पहले उससे स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट मॉनेटरी पॉलिसी, उसके लगभग 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और उन सारे 6 PYQs बहुत टेक्निकल है, तो उसको समझने में हमें टाइम भी लगेगा। तो आप जरूर देखिए अगला पार्ट, आपको बहुत मजा आने वाला है इस पर्टिकुलर सीरीज में। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।